Hare Krishna. First of all, I express my gratitude to all of you for making here today and supporting and helping NJ and having faith and trust in NJ. To all the NJ partners, all the NJ investors, existing investors and prospective investors. आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है दैट इज अबाउट बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. एक अच्छे निवेशक आप कैसे बन सकते हो, और एक अच्छे निवेशक बनने के लिए कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों की मैं एकदम बेसिक बात करूंगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी बेसिक रूल्स. एंड अगर आज के ये प्रेजेंटेशन के बाद आपने जो आज सैटरडे को शाम को आप जो टाइम दे रहे हो, आई होप दैट यू कैन टेक अ कपल ऑफ इंसाइट्स फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन एंड you become a successful investor. That is my earnest wish. And so I will start the presentation. I hope it is visible on the screen. So मेरा आज का जो टॉपिक है that is how to become a successful investor. And many times we when we are looking at successful investing, we are trying to identify a share कि भाई I get a good share where it can become a multi-bagger or a real estate property, and I can invest in that. Timing the stock market, like today also a lot of people are asking when to invest, when to exit. And investing in a big bang IPO, Swiggy's IPO was there, and several other IPOs come and go. Investing in a good mutual fund scheme, a micro cap scheme, a small cap fund, investing in fixed deposits, PPF. Is this successful investing? आपने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली इन अ शेयर और अ स्टॉक मार्केट और अ म्यूचुअल फंड. इज इट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग? टू माय माइंड द आंसर इज नो. This is not at all successful investing. This can be a means to an end. But what ultimately you want? आप क्यों invest कर रहे हो? Why an individual invest? Basic चीज अगर हम सोचेंगे, then what is successful investing? So successful investing is to achieve one's financial goals. पैसे का हम क्या करेंगे? कोई भी रिटर्न आया उसका हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली हमारे जो जीवन का ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, टू अचीव financial goals. And what can be the financial goals? Largely a worry free retirement. When you retire, you don't have to work after retirement at your wish. If you want to continue to work at your wish, but there should not be any financial constraint to work, or you are not dependent on anyone. किसी के ऊपर आप बोझा नहीं बनोगे. So that is a very very important thing, that you need to create a corpus. And let me tell you, very very few people are able to create such a corpus at the time of retirement. सेकेंड इज के भाई एवरीवन इंटेंट्स के भाई उनके जो बच्चे हैं उनको बेस्ट एजुकेशन मिले. वी नो द काइंड ऑफ कॉस्ट गुड क्वालिटी एजुकेशन इज इंक्रीजिंग. एंड कई बार पीपल ऑल्सो वांट टू सेंड देयर स्टूडेंट्स अब्रॉड. उनके बच्चों को अब्रॉड भेजना है, नॉट स्टूडेंट्स, द किड्स अब्रॉड. सो उसके लिए भी पैसे इकट्ठा करना जरूरी है. वन शुड प्लान इन सच अ वे that whether the kid is interested in going abroad or not, but you should not have any financial constraint in sending him. Ability to buy your dream house. Everyone has a life के अंदर एक एस्पिरेशन है, अपना खुद का घर हो, अच्छा घर हो, क्वालिटी हाउस हो, जहाँ पे हम पीसफुली रह सके. So do we have that ability to buy our house? Build a corpus for charity. If you all already are able to satisfy all the above things, then obviously you would want to contribute back to the society. Can you build a corpus for charity? And then leave a legacy for your future generations. जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा सा कॉर्पस छोड़ के जाओ, so that they can also continue to live a successfully and their financial health or their financial wealth is taken care of. I mean, broadly, these are the objectives, one's financial goals. It can be different from these also, but by and large, these are the financial goals. और जो successful investor जो है
वो यही उसी तरह से प्लान करता है कि ऑल दिस गोल्स गेट्स अचीव्ड, एंड हिज गोल और ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट अ स्टॉक और नॉट टू फाइंड आउट अ म्यूचुअल फंड स्कीम, बट टू इन्वेस्ट इन सच अ वे कि ये सारे फाइनेंशियल गोल्स उनके सेटिस्फाई हो जाए। और उसके अंदर सबसे बड़ा रोड ब्लॉक और डेविल क्या है? इन्फ्लेशन इज द डेविल। आप सब जानते हो कि पैसे का दाम कम होता जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, परचेजिंग पावर कम होता है। यू विल सी, आई विल जस्ट शेयर कि 1990 में पेट्रोल का दाम 1 लीटर का 9.84 था। टुडे इट इज 96 रुपीज। इट हैज ग्रोन एट अराउंड 7%। डीजल का दाम भी 9% से बढ़ा है, 4 रुपीज का 92 हो गया। सिमिलरली मिल्क फ्रॉम 6 to 74। तो ये जो जीवन जरूरियात की चीजें हैं, दे आर, द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाई द परचेजिंग पावर ऑफ मनी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। द परचेजिंग पावर ऑफ 1 लाख की वैल्यू जो है 1990 में, it has now only a purchasing power of 10,000 rupees, right? It has fallen down. So पैसा डेफिनेटली उस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा परचेजिंग पावर बढ़े। जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर जब आपको रिटर्न मिलता है तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ता है। जब आपका परचेजिंग पावर बढ़ता है तो आपके जो सारे फाइनेंशियल गोल्स है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स सेटिस्फाई होने की बहुत ज्यादा संभावना है। So basically, we need to generate returns over inflation, right? Or real returns. That obviously has to be the investment objective. While there are specific objectives, but to satisfy those specific objectives, it is very important to generate रियल रिटर्न्स। और रियल रिटर्न क्या है? इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन 7% से बढ़ा है और आपने 12% कमाया तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, यू आर अर्निंग 5% मोर देन दैट। तो हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि भाई कौन से एसेट क्लास ने इंडिया के अंदर रियल रिटर्न दिया। तो हमने ये कोशिश की है कि 1,000 रुपीज अगर 1982 में इन्वेस्ट किया होता तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो 35,000 हो गई, और 6% का करीब करीब इन्फ्लेशन था। तो उन्होंने रियल रिटर्न कितना दिया? 9% का यहाँ रिटर्न आया। उसमें से 2.9% का करीब करीब वहां पे गोल्ड में रियल रिटर्न आया। अगर फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा लगाया होता तो उसकी जो वैल्यू होती आफ्टर 1982 से लेके अभी 24 और 18 42 ईयर्स के अंदर 8.48% का एनुअलाइज रिटर्न है, और रियल रिटर्न है 2.33%। और इक्विटी आप देखोगे, बिजनेस जहां आप इन्वेस्ट करते हो, एंटरप्राइजेस, उसकी वैल्यू जो है वो 338 300 हो गई। 15.26% का एनुअलाइज रिटर्न एंड 8% का रियल रिटर्न। अगर मैं टैक्स इसमें डालूंगा तो शायद गोल्ड और एफडी में बहुत ही कम रियल रिटर्न हो जाएगा या जीरो रियल रिटर्न हो जाएगा। तो वहां पे ये जो सारे एसेट क्लासेस है इक्विटी को छोड़ के, वो आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म में एक ही एसेट क्लास है जो आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देता है, दैट इज इक्विटी, राइट? एंड दिस डेटा डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। अब ये ने हमने इंडिया की बात की, मेरे पास 209 साल की यूएसए की भी हिस्ट्री है। यूएसए में भी आप देखोगे $1 की किस तरह से वैल्यू बढ़ी है। 200 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बट यू कैन सी कि द स्टॉक्स हैज गिवन 6.9% का रियल रिटर्न, बॉन्ड्स ने 3.6%, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ने 2.5%, गोल्ड ने केवल 0.6% का ही रियल रिटर्न दिया है। एंड ऑब्वियसली जो करेंसी है उसकी तो वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी। तो $1 की वैल्यू करीब करीब 0.0043 हो गई, $0.043 की हो गई, मतलब कुछ भी नहीं रही 209 साल के अंदर वो वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू इट हैज बिकम। So this is how the power of compounding or the power of real returns is there over long periods of time। यहाँ पे देखोगे कि भाई $1 की वैल्यू बॉन्ड के अंदर $2163 हो गई, और इसके सामने आप यहाँ पे देखोगे तो 23 लाख
$34,920 हो गए स्टॉक्स के। भले ये बहुत बड़ा पीरियड है, बट ये 20-25 साल 30 साल के हमारे इन्वेस्टिंग के जर्नी में, 50 साल के इन्वेस्टिंग जर्नी में भी बहुत ही बड़ा कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ये रियल रिटर्न अपने को दे जाता है, राइट। अब और कंट्रीज की हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट अदर कंट्रीज। इंडिया और यूएस को छोड़ के बाकी की 16 कंट्रीज का यहाँ पे डेटा है, 101 ईयर का डेटा है। ये जो रेड बार्स है दे आर रियल रिटर्न्स इन इक्विटी, और सबसे कम रियल रिटर्न दिया है बेल्जियम ने 2.5%, एंड सबसे ज्यादा रियल रिटर्न दिया है स्वीडन ने 7.6%। और जो ब्लू बार है वो बॉन्ड के रियल रिटर्न है। कई कंट्रीज में आप देखोगे नेगेटिव रियल रिटर्न है, मतलब जितना इन्फ्लेशन है उससे भी कम बॉन्ड ने रिटर्न दिया, राइट। और हर जगह पे आप देखोगे तो इक्विटी ने बहुत ज्यादा रियल रिटर्न दिया कंपेयर टू बॉन्ड्स। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डेटा पॉइंट्स है जो हिस्टोरिकल है, वो आपको देख के पता चलेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी प्रश्न ये है कि वेदर मोस्ट इन्वेस्टर्स जनरेट रियल रिटर्न्स और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम रियल रिटर्न बना रहे हैं, और वेदर हिस्टोरिकली लार्जली वेदर इन्वेस्टर्स हैव मेड रियल रिटर्न्स। नॉर्मली कम लोग इन्वेस्टर्स रियल रिटर्न बनाते हैं। आप ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का ग्राफ है, 1980 में करीब करीब शुरू हुआ था, 600 टाइम से ज्यादा बढ़ गया है, राइट। 100 का इंडेक्स अब 78-80,000 के करीब है, 600 टाइम से ज्यादा बढ़ गया है। बट ये जो आप लाइन देखोगे ना, ये ग्राफ, ये ऐसा, ये छोटा यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे हर्षद मेहता के टाइम पे फ्रॉम द टॉप इट हैज गॉन डाउन बाय 54%, डॉट कॉम बबल के टाइम पे 56% गिरा है, राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे 60% गिरा है, कोविड के टाइम पे 37% टॉप से गिरा है। तो उसका मतलब ये है कि ये सीधा राइड नहीं है, डिक्लाइंस भी आते हैं, और डिक्लाइंस टेम्पररी आते हैं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कई बार 2-3 साल के लिए भी डिक्लाइंस आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइंस जनरली पीपल गेट into those decline, and because of that behavior, मैं behavior की बात करूंगा अगली स्लाइड में, people don't become successful, और उनको लगता है कि इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क है। इसीलिए इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क लगता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो मेजोरिटी लोग जब मार्केट बहुत तेज बढ़ने लगता है तभी पैसा लगाते हैं। जैसे कि हर्षद मेहता के टाइम पे 1992 में बहुत पैसा लोगों ने लगाया, डॉट कॉम पे टाइम पे 2000 में बहुत पैसा लगाया, 2008 में बहुत पैसा लगाया, उसके भी डेटा स्टेटिस्टिक्स है। बट जनरली द फ्लो इन इक्विटी markets, in equity mutual funds also, is directly proportional to the growth of the equity market. If the equity market is growing, you get more flows, and if it is falling, you don't get flows, right? तो ये क्या होता है कि ये आदमी जो है इन्वेस्टर रियल रिटर्न इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि वो फियर, ग्रीड और होप की साइकिल के अंदर फंस जाता है, राइट। जब मार्केट बढ़ने लगता है तो एक्साइटमेंट आता है, ऑप्टिमिज्म आता है। 2-3 साल पहले भी एकदम बढ़ने लगा, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट आया, बहुत पैसा अभी आ रहा है, थ्रिल आता है, यूफोरिया आ जाता है, चलो सारा पैसा मैं लगा देता हूँ, अपना रिस्क प्रोफाइल बदल जाता है, इक्विटी में जो डालता ही नहीं था उसको भी पूरा पैसा इक्विटी में डालना है। And then the market will start falling. Market will always move in cycles. It is not going to be linear. लॉन्ग टर्म में लीनियर, जैसे हमने ग्राफ देखा 600 टाइम का, वो लीनियर था, बट शॉर्ट टर्म में लीनियर नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। एंड दैट शॉर्ट टर्म पीरियड कैन बी 3, 4, 5, 7 years ऑल्सो, राइट। तो फिर जब जैसे गिरने लगता है तो एंजाइटी आ जाती है, डिनायल, फियर, एंड फिर पैनिक होता है, एंड देन प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल देन पैनिक के अंदर गलत समय पे सेल कर देते हैं, एंड दे डोंट होल्ड, एंड देन अगेन अपॉर्चुनिटी आती है, डिप्रेशन से होप में आते हैं, रिलीफ, ऑप्टिमिज्म। तो ये जो फियर, ग्रीड और होप की साइकिल है, रिस्क और अपॉर्चुनिटी की साइकिल है, लॉस्ट ऑफ पीपल इसके अंदर फंस जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट
दे डोंट हैव नॉलेज, बट इट इज अबाउट बिहेवियर। हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। फिर भी जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है, पीपल स्टार्ट गेटिंग फियरफुल, राइट? एंड व्हाई फियरफुल हो जाते हैं? कि जो मार्केट जब गिरता है और पेपर पे भी एक बार फाइनेंशियल लॉस होता है, मान लो 20% का फाइनेंशियल लॉस होगा, यहां से मार्केट ने 20% करेक्ट कर लिया अभी मान लो, तो ये जो फाइनेंशियल लॉस वो जगह पे प्रोसेस होता है जहां पे मॉर्टल डेंजर्स को हमारा ब्रेन जो एरिया से रिस्पॉन्ड करता है, वो एरिया में ये प्रोसेस होता है। सो दैट इज व्हाई फियर हैज अ ग्रेटर ग्रास्प ऑन ह्यूमन एक्शन देन डज द इंप्रेसिव वेट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। ये सेंटेंस का मतलब है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि 92 में 60% करेक्ट हुआ था, 2000 में 60% करेक्ट हुआ, 2008 में भी 60% नीचे गया टॉप से, और अभी भी ये नीचे जा रहा है। फिर भी हमको लगता है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट। एवरी टाइम वी फील कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, और हम हिस्टोरिकल एविडेंस भूल जाते हैं एंड वी गेट पैनिक, वी गेट डिस्टर्ब्ड एंड वी टेक रॉन्ग decisions, right? And that is why people don't make real returns, and we can see that in data। ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, इसकी पेनल्टी है। निफ्टी ने 1999 से मार्च 24 के अंदर 12.25% का रिटर्न दिया और एवरेज फंड के इन्वेस्टर ने केवल 9.52% का रिटर्न बनाया। ये जो बिहेवियर की पेनल्टी है, मार्केट बढ़ता है बट इन्वेस्टर्स डोंट मेक money because of that cycle of fear, greed and hope। they get into at a wrong time and get out at a wrong time। सिंपल काम करना है, स्टे इन्वेस्टेड रहना है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फियर, द ग्रीड which is there, people take wrong decisions and every time you feel this time it is different। and नॉर्मली क्या है, लोगों को अनसर्टनिटी नहीं चाहिए। अभी तो क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 35-40% का तो रिटर्न आ ही जाएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि 35% रिटर्न इज नॉर्मल। अब 35% रिटर्न कैनॉट कम। यू सी के 7%, 6% का इन्फ्लेशन है, तो 35% का रिटर्न कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी लोगों को 2 साल 3 साल के अंदर अभी रिटर्न आया है। एंड पीपल डोंट वांट अनसर्टनिटी। उनको क्या चाहिए कि भाई मार्केट बढ़ते ही रहना चाहिए। बट एक ही चीज सर्टन है, वो क्या है? अनसर्टनिटी। हमें ये पता नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद। इक्विटी मार्केट के अंदर शॉर्टर टर्म में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, लॉन्गर टर्म में इट इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ राइट एसेट क्लास यू विल गेट रियल रिटर्न्स। उसकी 10 साल की सर्टेनिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी ओवर 10 years इज हायर, बट 1 साल में क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा, उसकी कोई गारंटी या सर्टेनिटी होती नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दैट अनसर्टनिटी में ही हमारे लाइफ के सारे ब्यूटीफुल चैप्टर्स वोंट हैव अ टाइटल अंटिल मच लेटर। मतलब बहुत सारे लोग, जैसे हमने हमारा बिजनेस किया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, बट व्हेन वी टेक रिस्क, व्हेन वी टेक अनसर्टेनिटी एंड कंटिन्यू टू डू दैट, एम्ब्रेस दैट, आई थिंक यू गेट मैजिकल रिजल्ट्स। और इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा ही है। ये इस सेंटेंस से मैंने बताया कि इफ यू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स इन आवर लाइव्स वोंट हैव रिटर्न्स अंटिल मच लेटर, राइट? तो ये इसका एक उदाहरण है हाउ अनसर्टेनिटी वर्क्स। आपने देखा कि 1992 में हर्षद मेहता साहब के टाइम पे सेंसेक्स पहुंच गया था 4467 पे, वो बहुत ही फास्ट बढ़ गया था। इट करेक्टेड 54%, राइट? इट करेक्टेड 54%, बट उसके बाद आप 1 साल देखोगे तो 85% का रिटर्न, 3 साल देखोगे 22, एंड 5 साल में 15% कंपाउंडेड एनुअली। दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टन टाइम्स। जब यूफोरिया था, सर बहुत सब कर्नाटका बॉल बेरिंग में विजिट करते थे, कर्नाटका बॉल बेरिंग के स्टॉक में,
सर्किट लग जाती थी, ऐसा माहौल हो गया था। एंड देन लॉट ऑफ फियर, इतना डर के सब लोग ने सब कुछ बेच दिया। सेम थिंग हैपेंड, टेक बूम हो गया था, Y2K, सारे डॉट कॉम्स के अंदर बबल था 2000 के अंदर। अगेन इट करेक्टेड 56%, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ फियर। बट इफ यू हैड होल्ड दैट, यहाँ पे भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता, यहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट कर लिया होता, एंड इफ यू हैड होल्ड फॉर 3 years 5 years, you can just see what kind of returns it would have generated. Same thing, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 20,000 इंडेक्स हैज बिकम 8160। आप सोचिए 20,000 2008 के इंडेक्स पे, 20,000 के इंडेक्स पे आपने पैसा लगाया होता और अभी भी होल्ड किया होता तो आज भी 4 गुना आपका पैसा बना है, उस पे डिविडेंड्स मिले होंगे वो अलग। सो एवरी टाइम दिस हैपेंस। कोविड के टाइम पे भी ये हुआ, 37% मार्केट हैड फॉलन। अभी 5 साल हुए नहीं है कोविड को, बट 3 साल के अंदर 30% का रिटर्न दिया है। तो आई कैन ओनली टेल यू के इफ यू वांट टू प्ले अ गेम, आप ऐसा कीजिए कि 10 साल पहले की आपकी बर्थडे के दिन 1 लाख रुपया आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया है, या मोस्ट ऑफ द, या कोई भी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट किया है, कोई भी स्कीम आप ले लो। यू कैन आस्क योर किड के एक स्कीम के ऊपर हाथ लगा दे, या आप सेंसेक्स में उसको 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया आपके बर्थडे के दिन 10 साल पहले, एंड आज की उसकी वैल्यू ले लो। और कोई भी 10 साल का आप पीरियड ले सकते हो। मे बी आपने 2008 में आपको लगा कि भाई मार्केट फॉल हो गया था, वो टाइम से भी आप 10 साल का पीरियड ले लो, एंड जस्ट चेक व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न वन वुड हैव मेड, राइट। सो मेरा कहने का जो यहाँ पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी है, एंड अनसर्टेनिटी वर्क्स, राइट। तो इट इज द टाइम दैट मैटर्स एंड नॉट द मार्केट टाइमिंग। जितना आप समय दोगे, राइट। मुझे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इज नॉट एब्सोल्यूट, डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इज relative. 7 years is longer than 6 years, and 8 years is longer than 7 years, and 10 years is longer than 8 years. और आपका टेन्योर, आपका होराइजन 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का अगर आपका टेन्योर है, तो यू विल क्रिएट ह्यूमंगस वेल्थ। वॉरेन बफे साहब का 50 साल के टेनोर में उनका जो 80% वेल्थ बना वो लास्ट 10 साल के अंदर बना। ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, ही नेवर सोल्ड, राइट। ही बॉट क्वालिटी बिजनेसेस एंड होल्ड, उन्होंने होल्ड किए एंड क्रिएटेड फिनोमिनल वेल्थ, वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर्स। उनसे हमें सीखना है कि इट इज द टाइम दैट मैटर्स एंड नॉट द मार्केट टाइमिंग। हमको तो टाइमिंग करना है कि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अपूर्व भाई बता रहे थे क्या हो रहा है, राइट। रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गए यूएस में तो क्या होगा। अरे ये तो सारा होता ही रहा है, फिर भी 200 साल के अंदर स्टॉक्स ने रियल रिटर्न दिए है। यूएस की हिस्ट्री बता रही है, इंडिया की हिस्ट्री बता रही है, सारी दुनिया के कंट्रीज की हिस्ट्री बता रही है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी रियल रिटर्न देता है। और इक्विटी रियल रिटर्न नहीं देगा तो हाउ इज योर डेट सेफ। अगर आपने बैंक के अंदर एफडी की है तो बैंक एफडी का पैसा तभी दे पाएगा इफ द बैंक इज अर्निंग मोर देन द एफडी रिटर्न्स। इट इज लैंडिंग टू consumers, it is lending to businesses, and if they don't pay that back, your bank money is not safe, right? It is simple, but linear नहीं है, उसमें हमें पता नहीं है कि कब रिटर्न आएगा, कौन से साल में आएगा, कौन से मंथ में आएगा। लॉन्ग टर्म में जरूर आएगा, बट कौन से मंथ में आएगा या कौन से साल में आएगा वो बताना बहुत मुश्किल है। हमारा भी अगर टेन्योर लॉन्ग टर्म है देन यू डोंट नीड टू वरी। तो सिंपल एक मंत्रा मैं आपको बताऊंगा ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, ये 7th स्टैंडर्ड का एरिथमेटिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ एन। तो मेरा जो ए है वो वेल्थ हो गया, प्रिंसिपल जो है वो सेविंग्स हो गया। सो मैं जितना ज्यादा सेविंग्स करूंगा उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी। वेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेविंग।
आईफोन 16 की जगह पे छोटा वाला आईफोन में भी उतने ही फीचर्स है और उतना पैसा आप सेव करोगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट योर वेल्थ कैन बी आफ्टर 20 years और 30 years. वो तो आपने वैसे भी अदरवाइज कंज्यूम कर दिया है, राइट. आर इज द राइट एसेट क्लास. जैसे हमने रियल रिटर्न्स देखे इक्विटी, गोल्ड और बॉन्ड्स में, एफडीज में. अगर आपने इक्विटी में डाला है तो यू गेट अ कंपाउंडिंग इम्पैक्ट. आर आपको मिलेगा हायर रिटर्न. जितना हायर रिटर्न उतनी ज्यादा वेल्थ. एंड सबसे जो अमेजिंग है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, विस्फोटक, दैट इज एन. दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स. द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर यू क्रिएट वेल्थ. इफ दिस नंबर गोज टू 10 साल का 20 साल हो जाता है, 20 का 30 होता है और 30 का 40 होता है, तो इसका पावर अमेजिंग है. यू कैन ओपन योर कैलकुलेटर, योर गूगल शीट, एक्सेल, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये सिंपल फॉर्मूला 1000 10 साल के बाद क्या होगा, 15% पे 20 साल के बाद क्या होगा और 40 साल के बाद क्या होगा. It is a immense wealth one can create, and that is why to start early is extremely important to create wealth, and all your financial dreams can get satisfied. So simple क्या है, start early and invest for long term. Invest regularly through an SIP. रेगुलर नहीं है तो आप लमसम भी कर सकते हो. एंड इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास. राइट एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है. इक्विटी इज नॉट रिस्की इन लॉन्ग टर्म. रादर द रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज रिस्की, राइट. इट इज higher, riskier not to take risk for creating long-term wealth and satisfying all your dreams and aspirations and your need. So I'm going ahead. ये एक SIP का कैलकुलेटर बनाया है. एक सिंपल एग्जांपल है कि भाई SIP की ब्यूटी क्या है. अब आपको मैं ब्यूटी बताता हूं कि मान लो किसी ने 1000 रुपए की SIP की. सबको पता है SIP मतलब हर मंथ हम एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं. ये भाई ने SIP 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया. तो पहले मंथ में NAV थी 10 रुपये. तो 10 में क्या यूनिट्स मिले, 100 यूनिट्स. सेकेंड मंथ में 9 रुपीज हो गई. अब जब NAV गिरी तो ज्यादा यूनिट्स मिल गए, 111. 9 की 8 हुई तो और ज्यादा यूनिट्स मिले, और उसके बाद 11 हुई तो कम यूनिट्स मिले. तो जो उनको एवरेज जो कॉस्ट हुआ दैट केम टू ओनली 9.37. मैं 10 और 11 का एवरेज करूंगा तो 10.5 होता है. उसकी जगह पे ये जो एवरेज जो हो गई, दैट एवरेज इज लोअर देन द एक्चुअल एवरेज. इफ आई मेक अ एक्चुअल एवरेज, उससे ये लोअर है. बिकॉज जब मार्केट की NAV गिरती है यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, और लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाता है, जो हमने यहाँ पे विटनेस किया है. 1980 से विटनेस किया है. वर्ल्ड वाइड वी हैव विटनेस्ड. एंड इफ यू कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड इन एन SIP for a very long period of time, your average cost will be low. Over long period of time market will work, it will give you real returns, and you can compound your wealth, right. So benefit from volatility. one time अगर इन्वेस्ट किया होता है जैसे यहाँ पे, तो उनकी NAV 10 रुपीज की होती, उनकी कॉस्ट 10 की होती रादर, और आज यहाँ पे कॉस्ट है 9.37, राइट. सो दैट इज द बेसिकली ब्यूटी. इनका जो वैल्यू है वो 11 रुपए पे 4400 है. यहाँ पे इट इज अराउंड 4697. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ SIP. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली. हम एक दो दोस्तों की स्टोरी में बताता हूं. सूरज thought के let me invest 10,000 per month, and he started at the age of 25 years in a view to continue till 60 years for retirement. He has decided कि मैं ये SIP हर मंथ 10-10 हजार रुपया डालूंगा, right, from the age of 25 to 60 years. मतलब हर साल 1,20,000 इन्वेस्ट होगा, and it will get invested for 35 years, 25 साल से लेके 35 साल तक. तो टोटल कितना हो गया,
42 लाख का इन्वेस्टमेंट सूरज ने करना डिसाइड किया। उनके दोस्त अभिषेक ने सोचा कि भाई साथ में ही थे कि आई विल स्टार्ट आफ्टर 10 years and he started at the age of 35 but he decided कि भाई I will invest 25,000 rupees और उन्होंने 25,000 rupees इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 25,000 एक साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे तो 3 लाख और 25 साल के लिए तो 75 lakhs का इन्वेस्टमेंट उनका हुआ और सूरज का इन्वेस्टमेंट हो गया 42 lakhs का। ठीक है, सो आई एम मूविंग अहेड नाउ। एट द एज ऑफ 60 years सूरज accumulated 6.43 crore। हाउ मच? ऑफ from 42 lakhs he accumulated 6.43 crores, 15.31 times his investment value grew, and Abhishek accumulated 4.71 crore, though he had invested almost double जितना investment कर दिया था 75 lakhs, he only made 6.28 times। This is the power of compounding। We have assumed an average return of 12.64%, right, as per the AMFI best practice guidelines, and this is some of the funds have given even higher returns than that. Many funds have given higher returns, but this is at this rate also you can just see the power of compounding के अंदर n कैसा प्ले करता है, नंबर ऑफ इयर्स। विस्फोटक है। इन्होंने 10 साल के बाद क्या, his investment tenure was 25 years, सूरज investment tenure was 35 years। You can see the impact of that here। So start early, right? That is the mantra। और 25 साल के अगर मैं इंडियन म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री की बात करता हूं, 38 डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड थे। अगर आपने 25 साल पहले किया होता, मार्च 1999 में, राइट, टिल मार्च 24 का ये रिटर्न है, तो दैट 1 lakh एवरेज वैल्यू हैज ग्रोन 60 टाइम्स, 59.88 lakhs the industry ने कमा के दिया है 17.79%। some may have done better than this, some may have done slightly lower, but average return क्या मिला? 60 lakhs। so, अपना 6% का इन्फ्लेशन है, यहाँ पे रिटर्न आया 17%, 11% का रियल रिटर्न। एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में 10,000 की एसआईपी 25 साल पहले की है, द वैल्यू हैज ग्रोन टू 3.86। दिस इज अगेन एवरेज वैल्यू of all across the 38 funds. This is also 17.07% return। So this is the power of long term. This is the power of investing in the right asset class in the right way। अब एसआईपी को छोड़ के कोई ये भी बोलेगा कि भाई हमें तो पैसा विड्रॉ करना है, हमारी एज हो गई है, तो म्यूचुअल फंड्स में that is another need where lot of people may have। SWP is also there where one can get a रेगुलर कैश फ्लो। जब आप एसआईपी से कॉर्पस बना देते हो, अभिषेक ने और सूरज ने कॉर्पस बनाया, वो कॉर्पस के ऊपर देन दे कैन स्टार्ट जनरेटिंग एसडब्ल्यूपी। उन्होंने जॉब बंद कर दिया, बट ये कॉर्पस उनको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से रेगुलर पैसा देगा। सो एसडब्ल्यूपी इज द रिवर्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में से एवरी मंथ म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा जाता है, रेगुलर आउटफ्लो। और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि जो मैंने कॉर्पस बना दिया है, वन टाइम मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया और वहां से मेरे बैंक अकाउंट में एक रेगुलर कैश इनफ्लो आता है। मतलब इफ आई वांट 25,000 रुपीज पर मंथ, वो मेरे कॉर्पस में से आ जाएगा। 50,000 चाहिए तो 50,000 आ जाएगा, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख आएगा। इट डिपेंडिंग ऑन कितना आपने कॉर्पस लगाया है। तो जनरली हम को 25,000 चाहिए एवरी मंथ, तो 50 लाख का कॉर्पस है, दैट इज यू आर विड्रॉइंग अराउंड 6%। तो आपको हर मंथ 25-25 हजार मिलेगा। 1 करोड़ लगाओगे तो 50-50 हजार आप ले पाओगे। ज्यादा भी आप ले सकते हो, बट ये इतना पैसा अगर आप लेते हो 6% से, तो नॉर्मली आपका जो ये कॉर्पस है वो भी बढ़ेगा। 50 लाख की भी वैल्यू बढ़ेगी। हमारे पास कैलकुलेटर से जिससे आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपने एक एसआईपी से कॉर्पस बना लिया एंड देन यू कैन विड्रॉ इट ऑन अ
regular basis for a very, very long period of time, and your corpus continues to remain intact and it will continue to grow. एंड एक एसआईपी का कॉन्सेप्ट है, इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट है डेट का, जहां पे आपको रेगुलर रिटर्न मिलता है. दूसरा कॉन्सेप्ट था एसडब्ल्यूपी का, जहां पे आप विड्रॉल कर सकते हो. बट आपका जो ओवरऑल वेल्थ है, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म की भी नीड्स होगी, वेर यू विल नीड मनी फॉर कैश विच यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी, जो आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है 6 महीने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, वो पैसा शायद आपको डेट में रखना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क. तो दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, एक विद इन द एसेट क्लास, मतलब हमारा पैसा इक्विटी में होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, और दूसरे एसेट क्लासेस में होना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन योर नीड एंड योर रिस्क प्रोफाइल. अगर हमारी नीड बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म है तो ज्यादा पैसा हम फिक्स्ड इनकम में लगा सकते हैं. बहुत ज्यादा वेल्थ है और हमें ज्यादा कम रिस्क लेना है, तो मे बी माई एसेट एलोकेशन टूवर्ड्स फिक्स्ड इनकम विल बी मोर और इक्विटी विल बी लेस. बट मैं यंग हूं and I am ready to take risk and I have lot of aspirations, then I have to put more money in equity. Now ये इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और अदर एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड है, गोल्ड नॉर्मली पीपल इन्वेस्ट एज अ हेज अगेंस्ट रिस्क. बहुत ही रिस्की समय में गोल्ड इज वन एसेट क्लास विच गिव्स यू सेफ्टी. तो आप इस तरह से एक एसेट एलोकेशन का रूल बना सकते हो और यू कैन फॉलो दैट एंड रीबैलेंस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दैट इज द वे इन विच यू कैन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. अब दूसरा भी एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एसेट क्लास में जब आप पैसा लगाते हो, जैसे आपने इक्विटी फंड में लगाया, तो वहां पे आपको डाइवर्सिफाई करना है बेस्ड ऑन स्टाइल. अगर सेम स्टाइल के अंदर आपने 3 या 4 या 5 फंड में पैसा लगाया है, देन दैट इज नॉट द एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज सारे सिमिलर तरह के ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे. सारे लार्ज कैप में लगाए तो वो सारे सिमिलर तरह का आपको मिलेगा. इफ यू वांट एन इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन, यू शुड डाइवर्सिफाई बेस्ड ऑन स्टाइल. और स्टाइल फंड मैनेजमेंट में, इक्विटी में स्टाइल क्या क्या होती है? एक्टिव है, जो कि एक फंड मैनेजर रिसर्च करता है, मार्केट में जाता है एंड वो पैसा लगाता है. ही टेक्स अ कॉल ऑन दोस बिजनेस कि मैं कोलगेट में लगाऊं, बजाज ऑटो में लगाऊं, या हिंदुस्तान लीवर में लगाऊं, या इन्फोसिस में लगाऊं. दूसरा है पैसिव स्टाइल, जहां पे वो एक इंडेक्स बना है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, जैसे कि निफ्टी में 50 कंपनी है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, उसी के प्रपोर्शन में पैसा लगाते हैं. बीएससी 30 के में 30 कंपनीज है तो उसी के प्रपोर्शन में पैसा लगाते हैं. तो निफ्टी ने जो रिटर्न दिया वो आपका रिटर्न आएगा, सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया वो आपका रिटर्न आएगा. एक्टिव इन्वेस्टिंग विल ट्राई टू आउट परफॉर्म पैसिव इन्वेस्टिंग बिकॉज दे डू रिसर्च, they go to good companies, they will try to find कि कौन सी कंपनी में ज्यादा ग्रोथ है. बट वहां पे क्या है कि एक फंड मैनेजर कॉल लेके इन्वेस्टमेंट करता है. और एक थर्ड हाइब्रिड कैटेगरी है जो रूल बेस्ड कैटेगरी है, विच इज अ न्यूली इन्वेंटेड कैटेगरी, जहां पे एक रूल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता है. द रूल कैन बी ऑन क्वालिटी, द रूल कैन बी ऑन वेरियस फैक्टर्स. इसको फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, क्वांट इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, स्मार्ट बीटा भी बोलते हैं. तो वहां पे भी एक एक्टिव रिटर्न लाने की कोशिश है, पैसिव से ज्यादा रिटर्न. बट उसमें फंड मैनेजर कॉल नहीं लेता है. आपने एक सिस्टम बनाया है, आपने फंडामेंटल्स पे या टेक्निकल्स के ऊपर सिस्टम बना के उसमें से पोर्टफोलियो बनता है. और हमारी जो एनजे ग्रुप की जो एनजे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एनजे म्यूचुअल फंड, वो ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस फॉलो करती है. करेक्ट? तो मैं आज उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट बेसिकली जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वो ये स्टाइल्स के बेसिस पे इक्विटी के अंदर भी होना जरूरी है. तो ये एक एक्टिव और ट्रेडिशनल और रूल बेस के बीच का एक एग्जाम्पल है कि एक्टिव के अंदर जो
पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग है वो अल्टीमेटली काफी सारी चीजें प्री डिफाइंड है, बट अल्टीमेटली जो पिज्जा बनाता है, जो प्रिपेरर है, ही हैज सर्टन डिस्क्रिशन कि भाई मैं किस तरह से मिक्सिंग करूं, चीज ज्यादा डालूं, कैप्सिकम ज्यादा डालूं, क्या करूं। वाइल इन रूल बेस्ड सारी चीजें पहले से डिफाइंड है, मिक्सिंग, टेम्परेचर। तो ये सिंपल वे में आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बिटवीन ट्रेडिशनल एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग, राइट। सो बेसिकली हमने काफी सारी चीजें देखी, लॉन्ग टर्म इक्विटी का पावर देखा to generate real returns. We saw about SWP also. We discussed about asset allocation based on your needs. So what is the golden rule of successful investing? And we talked about diversification within the asset class also. So equity obviously is very important. Equity का होना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है, एंड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड इवन विद इन द एसेट क्लास, दोनों डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग है, अच्छे निवेशक बनने का सुवर्ण नियम, गोल्डन रूल, राइट। तो वॉरेन बफे साहब ने क्या बताया, ही इज द गॉड फादर ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। जो मैंने आपको बात बताई वैसे लगती बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म इक्विटी में डाल देना, भूल जाना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब मार्केट गिरता है तो सब हम वापिस भूल जाते हैं, पूरी हिस्ट्री भूल जाते हैं, राइट। सो इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, एंड दैट इज व्हाई पीपल मेक पे पेनल्टी एंड दे डोंट जनरेट रिटर्न्स एज पर द मार्केट, और उनकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। तो हमें अगर इसको इजी बनाना है आपके लिए, हाउ टू मेक इन्वेस्टिंग सक्सेस इजी, हमने सिंपल तो है बट इजी नहीं है, बफे साहब बता रहे हैं, और वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। बट एज एनजे आवर एस्पिरेशन इज टू make investing success not only simple but also easy। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you have to finding the right mutual fund distributor। वॉरेन बफे साहब एक चीज बता रहे थे कि if you don't know jewelry, know the jeweler, right? So you have to find the right mutual fund distributor। I am taking a privilege कि I will say here, find the right NJ partner, या जो आपको पार्टनर ये सेशन में लेके आया है, you to find such partner and get your friends also along with that partner। तो who is the right mutual fund distributor? So Daniel Kahneman साहब, he is a Nobel Prize winner, he says it is a prescriptive activity whose main objective should be to guide investor to make decisions to serve their best interest। इसका सिंपल मतलब है कि ऐसा पर्सन चाहिए हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू इन सर्विंग योर बेस्ट इंटरेस्ट। हमने बेस्ट इंटरेस्ट देख ली है, वरी फ्री रिटायरमेंट, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योर किड्स टू लेगेसी, you want to buy a house, and not someone who is going to give you prediction, trend, what is going to happen, or the best performing scheme, because no one can predict that, believe me। The right person is the person who doesn't give you information, he is concerned about your goals and dreams। When the market is falling down, he is the one who will come and tell you, don't worry, this is again going to correct। That is the kind of person you need। Nick Murray, one of the best advisors in the world, has told that at the end of your investing lifetime, it won't matter what your funds did, it will matter what you did। आपने एक माइक्रो कैप फंड खरीद भी लिया बट आपका उसमें 1% ही एक्सपोजर है, if has given the best return, it doesn't matter। But what matter is the function of the quality advice you get from one caring, competent advisor, your NJ partner, your partner in your financial success, and not from any number of magazines, podcast, all social media, or
TV shows. It is your mutual fund distributor, your NJ partner, who will take you and give you investment success. Believe me, he is the one who focuses on planning, perspective, and behavioral coaching rather than information feeding, predictions and performance. वो आके आपको कोई बोलेगा ईवी के अंदर बहुत अच्छा लगता है, वो स्टॉक में पैसा लगा दो, या ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पैसा उसमें लगा दो. You don't need such a person. You need a person who is concerned about your planning, who is concerned about your retirement, who is concerned about that you don't make any mistake. You don't, he helps you save more. He will help you save more. He gives you a perspective, creates an asset allocation for you. He gives a plan and reviews it on a regular basis. You don't need to look at your portfolio on a daily basis. It doesn't help. Rather, it is disturbing and it is distracting. You can meet once in 6 months with your NJ fund distributor, your partner, or the right person who will help you and ensure that your investments are going as per its goals. So, the success for investment is find the right mutual fund distributor and follow his advice, right? That is what will make you successful. Believe me, find the right mutual fund distributor and follow his advice, and just check after a few years how he has made a difference. And there are so many examples in our network. They have made difference in life of several individuals. We are very glad to share one data with you that over a period of 10 years, the average return which we have been able to generate is over 15% for more than 500,000 customers. जो एनजे के 5 लाख कस्टमर्स है, उनका एवरेज रिटर्न 15% के ऊपर आया है 10 साल में. एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ द राइट वर्क which all the NJ partners have done. So friends, with that I end my presentation here. Thank you so much. Once again, grateful to you for having faith and trust in NJ. To all the partners, all the customers, Hare Krishna.